अच्छा, इस फॉर्मूले से कोड की बात कर रहे हो, जे इज इक्वल टू 1। अतुल, यस सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर। स्क्रीन क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक बार ये राइटिंग और देख लो। क्लियर है सर। ठीक है, यस सर। ओके। Let's continue with the topic that we were discussing last time. The topic that we had started was impulse and momentum. So we learned about linear momentum, angular momentum, the letters that we use to represent these things. Impulse we had studied, it is the product of force and time. What is the physical significance of impulse? Angular impulse, and then principle of momentum, which is basically a restatement of Newton's second law. Impulse momentum principle for a particle and rigid body, which says that the impulse acting on a system or a particle or a body must be equal to the change in momentum. So impulse is the thing that brings about change of momentum. Similarly, the same statements that we are making for linear motion can be restated for angular motion also. So if the principle is stated for linear motion, the impulse momentum principle can also be stated for angular motion, saying that the angular impulse acting on a body must be equal to change in angular momentum. And now let us consider a new principle today, which says that momentum is conserved if the net resultant force acting on a body or a system is zero. This is called as the principle of conservation of momentum. It says that if the resultant force on a particle is zero during an interval of time, linear momentum
of the particle remains constant. Now, obviously, if you are stating it for linear momentum, the same thing will go for angular momentum also. Now, the proof of this is very simple. From impulse momentum equation, we already know that if F force is acting on a particle for a duration T1 to T2, then this quantity represents the impulse. This is impulse. And if instead of taking mv1 on the left hand side, if you take it to the right hand side, you can write it as minus mv1. So you see that the right hand side is change in momentum and the left hand side is impulse. This is the impulse momentum principle. And now, according to the statement of conservation of momentum, if you say that the net resultant force acting on a system or a particle is zero, then what will be the change in momentum? You tell me. Anybody who is listening, you tell me if integral f dt t1 to t2 is equal to mv2 minus mv1. And if I say that the net resultant force acting on the system is zero, what will be the value of mv2 minus mv1? Zero. It will be zero, because if f is zero, this whole thing will become zero. So that means mv2 minus mv1 becomes equal to zero. Or if you take mv1 to the other side, now you can say that mv1 equal to mv2. That means in the first state or position number 1 and the second state or position number 2, if you simply compare nothing else but only momentum of mass m. So at first state, let us say the velocity was v1, and in the second state, let us say the velocity was v2. Then the mass into velocity at state 1 must be equal to mass into velocity at state 2. This is the conservation principle of conservation of momentum. So it can be directly derived from the impulse momentum equation by putting f equal to 0. Okay. Another statement for this is for the system. The first statement of conservation of momentum was described for a particle. Okay. Now another statement is for two or more bodies. That means when multiple bodies are involved, then we call it as a system of bodies. For two or more bodies in an isolated system means nothing is externally acting upon the system. उस सिस्टम पे ना तो बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा है, ना उस सिस्टम का इन्फ्लुएंस बाहर जा रहा है. Okay, so if you take an isolated system and consider multiple bodies inside that system and they are exerting force on each other, यानी कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं या पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, आपस में ही उनका गेम चल रहा है, then their total momentum remains constant unless an external force is applied. यानी जब तक कोई external force या influence उस पर act नहीं करती, तब तक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अगर आप एक सिस्टम मानते हो, तो उनके इंटरेक्शन के कारण जो मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट कंपेयर करोगे तो वो सेम आएगा. इसका टिपिकल एग्जांपल होता है वन बॉल कोलाइडिंग विद अनदर बॉल. ठीक है, जैसे कि एक बॉल ट्रैवल कर रही है हवा में से एट वेलोसिटी लेट अस से u1. Another ball is coming behind this ball at a velocity say u2. ठीक है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2. At a particular time, these two balls collide with each other. These will collide with each other if u2 is greater than u1. यानी कि अगर पीछे आ रही बॉल की वेलोसिटी आगे चल रही बॉल से ज्यादा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये आपस में टकराएंगे. So after colliding, you get another state in which अब collision के कारण इनकी velocity change हो गई. मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो वही रहेगा, मास का ट्रांसफर तो हुआ नहीं है. So m2 will remain m2, m1 will remain m1, but one thing is changed now. Due to the collision, the original velocities possessed by these masses
will change. We don't know how much the change will be. अपन को exactly ये नहीं पता कि भाई कितना change होगा. But let us say that now after collision and separation, the velocity of the first mass is v1 and velocity of the second mass is v2. So what equation can you make in such a scenario? इसमें एनर्जी प्रिंसिपल लगाओगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाओगे, ये सब लगे या ना लगे, we don't know. But one principle can definitely be applied, and that is the principle of conservation of momentum. तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आप इन दोनों बॉल्स को एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर लो, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रिगर हो जाएगा. तो ये बोलता है फॉर टू और मोर बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. अब देखो ये बॉल आपस में टकराए, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर के नहीं एक्ट करे. सो इफ inside an isolated system the components of the system interact with each other, then momentum is not lost. ये कहता है ये. तो अब मैं क्या कह सकता हूं? बिफोर कोलिजन व्हाट वाज द टोटल मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम? पहले मास का मोमेंटम कितना है? m1u1. दूसरे मास का मोमेंटम कितना है? उसको ऐड कर दो, m2u2. सो आई कैन से that this is the total momentum originally possessed by the system at state number 1. तो फर्स्ट स्टेट में यानी बिफोर कोलिजन ये टोटल मोमेंटम सिस्टम का है. कोलिजन हुआ, इंपैक्ट हुआ और उसके बाद बॉडी सेपरेट हो गई एंड नाउ दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज. So now after the collision, if I consider the same system of both the balls and I say that no external forces act upon them, only they collided with each other. So what will be the momentum after collision? It will be m1v1 plus m2v2. So this is the new momentum of the system after collision. Now we enact the प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. हम ये कहते हैं कि भाई कोलिजन तो सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स का ही हुआ है, तो इसीलिए मोमेंटम का लॉस नहीं हुआ. पहले टोटल जितनी मोमेंटम थी उतनी ही बाद में भी रहेगी. सो यू कैन से दैट m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2. This is the statement of law of conservation of momentum for a system. एक पार्टिकल के लिए भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो. लेकिन एक पार्टिकल के ऊपर, अकेले के ऊपर अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे, तो जैसे कि एक सिंगल मास ले लिया और बोला कि वो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो स्टेट 1 में भी v वेलोसिटी से ही चलता हुआ दिखेगा, स्टेट 2 में भी v वेलोसिटी से ही चलता हुआ दिखेगा, इसमें कुछ चेंज मिलेगा ही नहीं आपको. सो इट्स kind of meaningless to state the conservation of momentum principle for a single particle. समझ रहे हो? एक पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगाना और उसको स्टेट करना कोई मतलब की बात ही नहीं है. भाई जब मास के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी तो कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, ना डिसिलरेशन होगा ना एक्सेलरेशन होगा. और डिसिलरेशन और एक्सेलरेशन के अभाव में उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं. तो स्टेट 1 ले लो, स्टेट 2 ले लो और आगे के 15-20 स्टेट और ले लो, सब में उसकी m तो m रहेगी, v भी v ही रहेगी. So there is nothing important in stating the principle of conservation of momentum like this. A better statement is the second one, which gives the principle of conservation for multiple bodies contained inside a system. तो ये चीज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लगाया है. प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिस्टम्स एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स. तो आपके कभी भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको कभी ऐसी टेम्पटेशन हो कि मैं एक बॉडी के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेता हूं, तो ऐसा मत करना. ऑलवेज अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन multiple objects, not on singular objects. But on the other hand, the other principles that you have learned, work energy principle हो गया या conservation of energy principle हो गया,
ये सारी प्रिंसिपल्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पर भी लागू होती है और सिस्टम्स पर भी लागू होती है. बट यू हैव टू रिमेंबर, for principle of conservation of momentum, you should not apply it on single objects. You should apply it on collection of objects which are interacting with each other. ठीक है. तो ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर लीनियर मोशन. तो अब इसी तरीके से एंगुलर मोशन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं. एंगुलर मोशन के लिए भी यही सेम डेरिवेशन करके आप कह सकते हैं कि इफ द रिजल्टेंट टॉर्क और मोमेंट एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, then the final angular momentum of the body or the system will be equal to the initial angular momentum of the system. और ये h जो है एंगुलर मोमेंटम, ये किसके बराबर होती है? दिस इज इक्वल टू आई ओमेगा. तो बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हो? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब है I1 omega 1 will always be found equal to I2 omega 2 if no external influence is affecting your system. तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मेरे ख्याल से आपने 11th 12th में भी पढ़ा हुआ है. सो वी आर नॉट गोइंग टू ड्वेल ऑन दिस टॉपिक टू मच. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने. नाउ लेट अस डायरेक्टली गो ऑन टू सॉल्यूशन ऑफ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. तो अब एक बार अपन देख लें कि अपन ने कौन कौन से फॉर्मूले सीख लिए हैं जो अपन अब लगाने जा रहे हैं. ठीक है. इट्स बेटर टू आइडेंटिफाई एंड रिवाइज द फॉर्मूले दैट वी हैव लर्नड. इस वाले टॉपिक में, यानी कि ये जो लेक्चर नोट्स दिए हैं इसमें आपको बेसिकली दो फॉर्मूले लगाने हैं. द फर्स्ट फॉर्मूला रिलेट्स टू इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल. इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनना. If there is only one body and if a force is acting on it for a duration of time t, तो मैं कहूंगा फोर्स कितनी थी? F थी. टाइम कितना था? T था. तो F इंटू टी क्या हो गया? दिस इज इंपल्स. Impulse momentum principle says that the impulse acting on a body will change its momentum and therefore हाँ, क्या हुआ? कोई डाउट है? Somebody spoke in between. ठीक है. Anyway, impulse momentum principle says that this impulse force into time will be equal to final momentum minus initial momentum, where I will rather remove this m1 and m2. I will simply write it as m because we are considering only one body here. ठीक है. तो अगर एक बॉडी की बात की जाए जिसका मास m है और उस पे F फोर्स एक्ट करती है, कांस्टेंट फोर्स है और वो t टाइम तक एक्ट करती है, तो क्या होगा? इस इंपल्स की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगी. सो इट विल बी इक्वल टू mv2 माइनस mv1. ठीक है. ये वन यहां से हटाना है आपको. The connection is a little bit slow. I've already removed it, but it is getting removed while we are showing it. ठीक है. ये है impulse momentum principle. अगर इसको रोटरी मोशन के लिए लगाया जाए तो एंगुलर इंपल्स आ जाएगा. फोर्स इंटू टाइम की जगह पे मोमेंट इंटू टाइम आ जाएगा. And this will be equal to I omega 2 minus I omega 1, where I now, इसको I की बजाय I नॉट लिख देते हैं ताकि आपको इंपल्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंफ्यूजन नहीं. Look at this equation. Impulse momentum equation for rotary motion. जहां पर फोर्स इंटू टाइम था
उसकी जगह पे मोमेंट इनटू टाइम, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। Now, if instead of a single constant force acting on a body, if there are multiple forces acting on the body for a duration of time t, then how do you write impulse momentum equation? आपने कहा कि एक बॉडी है जिसका मास m है, उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही है t टाइम के लिए, एक F1 है एक F2, तो मैं क्या कहूंगा, फाइंड द टोटल इंपल्स। टोटल इंपल्स कैसे पता करेंगे, पहली फोर्स के कारण इंपल्स कितना था, F1 इंटू टी, दूसरी फोर्स के कारण इंपल्स कितना था, F2 इंटू टी, सो दिस इज द टोटल इंपल्स। आई कैन राइट इट एज समेशन ऑफ F इंटू टी, यानी कि जितनी अनेक फोर्सेस हैं उन सब के कारण आप टी टाइम के अंदर जो इंपल्स बन रहा है उसको पता करो, एंड देन पुट दिस इक्वल टू अगेन mv2 माइनस mv1। तो अब की बार अगर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही है किसी बॉडी पे, तो इंपल्स जो होगा इट विल बी द टोटल ऑफ द इंपल्सेस ऑफ ऑल द फोर्सेस फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड दिस समेशन ऑफ इंपल्सेस विल हेल्प इन चेंजिंग द टोटल मोमेंटम। तो mv2 माइनस mv1 जो है वो इस टोटल इंपल्स के बराबर होगा। नाउ व्हाट हैपेंस इफ द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। अभी तक अपन ने एक फोर्स की बात की, दो फोर्सेस की बात की, इसी तरह से मल्टीपल फोर्सेस की बात कर सकते हैं, बट व्हाट हैपेंस इफ द फोर्स इटसेल्फ इज नॉट कांस्टेंट। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होती है तो आप F इंटू टी करके इंपल्स नहीं निकाल सकते, यू कैन नॉट फाइंड द इंपल्स सिंपली बाय पुटिंग F इंटू टी। उस केस में क्या करना पड़ेगा, you will have to find the impulse by integrating from t1 to t2 f variable multiplied by small time dt। इस तरीके से आएगा। लेट अस वेट फॉर इट टू अपीयर। This is the impulse when the force is not constant। तो impulse निकालने के कई तरीके हैं, और कुल मिलाकर के जैसे एक वेरिएबल फोर्स के कारण अगर इंपल्स ये है, तो वापस से मोमेंटम का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर हो जाएगा mv2 माइनस mv1। दिस इज हाउ यू अप्लाई impulse momentum equation। Let it just appear। Integral f dot dt will be equal to mv2 minus mv1। ठीक है, इस तरीके से इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं। नाउ लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू अप्लाई व्हाट वी हैव लर्नड हियर। A football of mass 200 gram is at rest। ठीक है, so a football is placed on the ground and it is at rest। इसका मास दे रखा है। A player kicks the ball which moves with a velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degrees। So after kicking the ball is now moving at a velocity of 20 meter per second at an angle of
30 degrees. Find the force exerted by the player on the ball if duration of strike is 0.02 seconds. See, one thing that you have to identify is in problems of kinetics, sometimes it becomes difficult to understand which formula has to be applied. अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये बोल रहा है कि 0.02 सेकंड तक प्लेयर का पैर बॉल के कांटेक्ट में था. इस तरह का कभी भी कोई स्टेटमेंट आ जाता है when the time duration is involved for the application of force, then it is a very good hint for you to understand कि इस प्रॉब्लम को इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल से सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर यही हिंट है आपके लिए कि इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल कब लगाना है. ठीक है. नाउ इन दिस प्रॉब्लम, अगर एक पड़ी हुई बॉल को किसी ने लात मारी और अगर वो ग्राउंड से 30 डिग्री पे ऊपर को गई, तो मेरे को ये बताओ कि उस प्लेयर ने जो फोर्स लगाया होगा उसका एंगल कितना होगा. लेट एफ बी द फोर्स अप्लाइड बाय द फुट ऑफ द प्लेयर. मैं ये जानना चाहता हूं, एक फुटबॉल चुपचाप से जमीन पे पड़ी थी, किसी ने आके उसको लात मारी और लात मारते ही वो एग्जैक्टली 30 डिग्री के एंगल पे ग्राउंड से ऊपर को उठ गई. तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो फोर्स लगी होगी वो फोर्स कितने एंगल पे लगी होगी. क्या उसने ग्राउंड के पैरेलल लात मारी थी? क्या उसने फुटबॉल को ऊपर से दबाया था? क्या उसने फुटबॉल को बिल्कुल नीचे से लात ऊपर को मारी थी? किस तरीके से मारी होगी, किस एंगल पे लात मारी होगी, या टेढ़ी मारी होगी, कैसे मारी, किस एंगल पे मारी जिससे कि बॉल जो कि चुपचाप से बैठी थी वो एग्जैक्टली 30 पे चल पड़ी. यू टेल मी, एनीबॉडी. 30 डिग्री के एंगल पे मारी होगी सर. बिल्कुल 30 डिग्री पर ही मारी होगी, इसके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं. अच्छा, और कोई चॉइस अगर आनी होती तो वो कब आती? वो अब अगले वाले प्रॉब्लम में आएगी. जैसे कि ये देखो, एक बार अपन थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ के सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं. अ 1 न्यूटन बॉल इज बोल्ड टू अ बैट्समैन. एक बैट्समैन की तरफ को एक बॉल फेंकी गई. द वेलोसिटी ऑफ बॉल वाज 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली जस्ट बिफोर द बैट्समैन हिट इट. तो यानी कि बॉल बैट्समैन की तरफ बिल्कुल प्योर हॉरिजॉन्टली जा रही थी. अब बैट्समैन ने बल्ला घुमाया और यहां पर उसकी कांटेक्ट हुई, बैट और बॉल का कांटेक्ट यहां पर हुआ, लेकिन कांटेक्ट के बाद बॉल वापस गई 30 डिग्री पे ऊपर की तरफ. दिस इज द फाइनल ट्रैवल ऑफ द बॉल. अब क्या आप ये कह सकते हैं कि बैट्समैन ने एग्जैक्टली इस 30 डिग्री पे ही बैट चलाया होगा? नाउ यू कैन नॉट से इट. इफ द बॉल वाज ऑलरेडी ट्रैवलिंग एट सम वेलोसिटी, इवन इफ इट इज अ हॉरिजॉन्टल ट्रैवल, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बल्ला किस एंगल पे चला होगा. यू कैन नॉट से. ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अगर एक बॉल किसी एंगल पे जा रही है, दूसरी बॉल किसी एंगल पे जा रही है, और ये दोनों टकराते हैं, तो टकराने के बाद ये दोनों किस एंगल पे जाएंगे हम कह नहीं सकते. या फिर अगर आपको टक्कर मारने के बाद का सीन दिखाते हैं कि ये पहली बॉल तो यहां गई, दूसरी बॉल यहां गई, अब ये गेस करो कि पहली और दूसरी बॉल की इनिशियल वेलोसिटीज का डायरेक्शन क्या था. यू कैन नेवर से. इसको सॉल्व करके निकालना पड़ता है. तो इसलिए अगर ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी से आती हुई बॉल को अगर आप स्ट्राइक करते हैं, तो आप ये डायरेक्टली नहीं गेस कर सकते कि किस एंगल पे स्ट्राइक किया गया होगा. तो वो एंगल भी पता करना पड़ता है आपको. लेकिन इस केस में चूंकि बॉल चुपचाप से पड़ी हुई थी और उसके बाद फोर्स लगने के बाद सीधे 30 पे गई, इन दिस केस वी कैन 100% से विथ फुल गारंटी that the force would also have been applied at the same angle at which the ball starts to move. तो ये भी 30 डिग्री ही होगी. ठीक है. तो एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर लिया कि आपकी वेलोसिटी और फोर्स दोनों का एंगल सेम है, और इन अदर वर्ड्स दे आर लाइंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन. ठीक है. Now how do we apply impulse momentum theorem in this? अपन को ये f निकालना है. This f is the quantity that is unknown. ठीक है. तो मैं क्या कहूंगा,
भाई फोर्स कांस्टेंट मान रहा हूं मैं, इसमें कोई वेरिएबल फोर्स की कहीं कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई बात ही नहीं बता रखी है. So by treating the force as a constant quantity, F multiplied by T must be equal to mass of the ball multiplied by velocity 2 minus mass of the ball multiplied by velocity initial. ये है इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने अभी बताया था. ठीक है, F निकालना है. टाइम ऑफ इंपैक्ट कितना है, क्वेश्चन में देख के बताओ, टाइम ऑफ इंपैक्ट कितना है. रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज द टाइम ऑफ इंपैक्ट. ये फोर्स कितने देर तक बॉल से कांटेक्ट में रही. 0.02 सेकेंड. पॉइंट 0.02 सेकेंड्स. मास ऑफ द बॉल कितना लोगे. 1/5 kg. मास ऑफ बॉल इज 200 ग्राम्स, तो क्या मैं 200 ले लूं क्या. नो सर, केजी में. ग्राम्स में नहीं ले सकते, आपको सारी चीजों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. व्हाट इज मास, टेल मी. 1/5 kg. 0.2 kg. ठीक है, 200 grams means 200 divided by 1000 किलोग्राम. ठीक है, ओके. अब अपन को V2 जो है उसके लिए इस 30 डिग्री का अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया. क्यों, क्योंकि F और V दोनों एक ही लाइन पर है. तो आप इस प्रॉब्लम को इस 30 डिग्री के पर्सपेक्टिव से देखने की बजाय ऐसे भी देख सकते हो. भाई आप थोड़ा सा टेढ़े खड़े हो जाओगे तो ये प्रॉब्लम ऐसी बन गई आपके लिए कि फोर्स बॉल पे यूं लगी और बॉल की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में चेंज हो गई. ठीक है, तो इसमें एंगल का कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं. लेट अस फॉरगेट अबाउट दिस 30 डिग्री. तो अब V2 कितनी है, कितनी वेलोसिटी से गई, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गई. व्हाट इज V1, टेल मी. 0. इट इज 0, क्योंकि इनिशियली बॉल रेस्ट पर थी. क्या इसको सॉल्व करके आप F निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते. सिंपल प्रॉब्लम है. ठीक है, डू द कैलकुलेशन एंड find out whether you get the value of F as 200 Newton or not. समझ में आ गया प्रॉब्लम कैसे किया है. यस सर. डाउट थोड़ी है कोई इसमें. आगे चले. यस सर. ओके, let us move on to the next problem. Very similar problem, but now a little bit more complicated because the ball is now not at rest. The ball is already moving with some velocity, and if you try to hit an object which is in motion, then you cannot guess the direction. आपको सिर्फ ये बताया कि ये नहीं पता बल्ला किस दिशा से आया. बैट को यों लाके स्ट्राइक किया गया, यों स्ट्राइक किया गया, यों स्ट्राइक किया गया, यों स्ट्राइक किया गया. देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ द बैट स्ट्राइकिंग द बॉल एट सम डायरेक्शन और एट सम एंगल. बस इतना पता है कि बैट जिस भी दिशा से आकर के बॉल पे हिट हुआ उसके बाद बॉल 30 डिग्री पे ऊपर को गई. इतना पता है बस. तो अब अपन क्या करें, अपने पास हथियार तो एक ही है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. तो आप बस यही लगाना जानते हो कि भाई F इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. ये आता है आपको. अब इससे ये कैसे निकालेंगे, आपको दिशा भी निकालनी है कि भाई किस डायरेक्शन से बैट आई, और ये फोर्स भी निकालना है. लेट अस सी व्हाट दे आर आस्किंग. 1 न्यूटन बॉल है, वेलोसिटी ऑफ बॉल इनिशियली दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली. आफ्टर हिटिंग इसकी 48 मीटर पर सेकेंड है, एंगल भी दे रखा है. फाइंड द एवरेज फोर्स exerted on the ball by the bat if the impact lasts for 0.02 seconds. तो चलो अच्छा है, T दे रखा है, मास ऑफ द बॉल दे रखा है. मास ऑफ द बॉल कितना है जरा बताएंगे, प्रॉब्लम में पढ़ के बताइए. व्हाट इज M.
What is the value of m? Look at the problem and tell me. बताओ भाई. Sir, 1 divided by 9.81. Yes. By 1 Newton की ball दे रखी है. This is not mass. This is the weight of the ball. And if you need the value of m, you have to divide it by the value of small g, which is 9.81. तो 1 upon 9.81 है m. ठीक है. अच्छा, अब मेरे को इसी प्रॉब्लम की डायग्राम को देख करके बताओ v1 कितना लूं मैं. How much should I take v1 as? 20 मीटर पर सेकेंड. और v2 कितना लूं? Sir, 48. v2 को 48 नहीं ले सकते. यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर 48 करना cos है. 30. यस. अब देखो यहां पर ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि ये जो इक्वेशन आप अप्लाई कर रहे हैं ये तब ही एप्लीकेबल होगी अगर आपकी v1 v2 f ये सारी एक ही डायरेक्शन में है. तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? v1 तो हॉरिजॉन्टल है, v2 हॉरिजॉन्टल नहीं है. तो पहली बात mv2 को mv1 में से माइनस कर ही नहीं सकते आप until and unless they are in the same direction. और इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपके हाथ में? f की डायरेक्शन ही नहीं पता. तो आप अभी इस सिचुएशन में ft इक्वल टू mv2 माइनस mv1 इक्वेशन ही नहीं लगा सकते because you don't know the direction of f and v2 and v1 are not in the same direction even though you know the values. तो अब क्या करें? तो अब अपन ये कर सकते हैं, apply impulse momentum equation for pure x direction, then reapply impulse momentum equation for pure y direction. तो अब मैंने इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका निकाल लिया. अब मैंने ये कहा कि भाई अगर मैं सिर्फ सारी चीजों के v1 का भी x कंपोनेंट ले लूं, v2 का भी x कंपोनेंट ले लूं और f का भी x कंपोनेंट ले लूं, तब तो मैं लगा सकता हूं ना ये. अब सारे x कंपोनेंट्स के लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम वैलिड हो जाएगी. अब वापस से लगाऊंगा v1 की y कंपोनेंट, v2 की y कंपोनेंट और फोर्स की भी y कंपोनेंट ले लूं, तो ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम या प्रिंसिपल आपकी y डायरेक्शन के लिए भी वैलिड हो जाएगी. So this is how you solve when the direction of the force is not known or there are multiple directions. You apply impulse momentum theorem in the x direction and then in the y direction. अब इसको कैसे करेंगे देखें. इस पूरी प्रॉब्लम को मैं रीस्टेट कर रहा हूं. मैं ये कहूंगा the f component of force multiplied by the time duration of impact must be equal to m into v2 वेलोसिटी का x कंपोनेंट माइनस m into v1 वेलोसिटी का x कंपोनेंट. अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने वाली वैल्यूज मुझे बता दो. t कितनी है? 0.02 सेकेंड्स. m की वैल्यू 1/g. ठीक है. v2x की करेक्ट वैल्यू बताओ मुझे. एनीबॉडी गिव मी द करेक्ट वैल्यू ऑफ v2x फ्रॉम द डायग्राम. Sir, minus 48 cos 30. Sir, 48 cos 30. एक्सेलेंट. ये माइनस साइन जो आपने लगाया है यही मैं जानना चाहता था कि आप पता कर पाओगे कि नहीं. द करेक्ट वैल्यू ऑफ v2x यानी कि फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है माइनस 48 cos 30. माइनस क्यों लगाया? क्योंकि आपने x डायरेक्शन कौन सी चूज की है? यू हैव टेकन x डायरेक्शन एज द स्टैंडर्ड
पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर एक्स एक्सिस, जो पूरी दुनिया जिसको एक्स एक्सिस को पॉजिटिव मानती है, अपन उसी को एक्स के लिए पॉजिटिव मान रहे हैं। तो अब 48 का cos 30 जो है वो उस दिशा में आ रहा है उल्टा, तो इसलिए -48 cos 30 इज v2x। अब v1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है? You see that initial velocity is perfectly aligned and directed towards the positive x-axis. तो v1x की वैल्यू तो सीधे सीधे 20 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब इस इक्वेशन में आपको कौन सी चीज अननोन है ये बता दो। When you applied the equation of impulse momentum principle for x direction, what is the singular unknown quantity in this entire equation? सर fx FX. सिर्फ fx है, तो आप fx की वैल्यू क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमने निकाल ली इस इक्वेशन को अप्लाई करके? इसको फिनिश कर दें। Yes, sir. अब apply impulse momentum equation for the y direction by considering the upward direction of y as the positive direction. ठीक है, once again if I write the impulse momentum principle for y direction, I will write the y component of force is also acting for time t. This will be equal to mass into the final velocity, its y component, minus mass into the y component of the initial velocity. अब मेरे को ये बताओ, देखो t तो पता है आपको, m पता है आपको, v2y कितना है बता दो। व्हाट इज v2y? यानी कि फाइनल वेलोसिटी का y 48 930. 930 प्लस है या माइनस? माइनस माइनस, सॉरी प्लस 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 रहेगी प्लस सर। ऊपर को है ना, ये वेलोसिटी Plus. हो जा रही है, तो इसका x कंपोनेंट तो इधर को था नेगेटिव, लेकिन y कंपोनेंट तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो 48 sin 30 विद अ प्लस साइन। व्हाट इज v1y? यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0. इट इज 0। तो ये 0 हो गया, तो ये तो पूरी क्वांटिटी खत्म हो गई। नाउ वंस अगेन इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, द ओनली अननोन क्वांटिटी इज fy, और बाकी सारी क्वांटिटीज आपको पता है। सो नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ fy आल्सो। ठीक है, तो अब अगर fy और fx दोनों निकाल ली, what is the value of f? How do you find f? If you know the x component of f and the y component of f, ये आपने अगर निकाल लिया है तो f कैसे निकालोगे ये बताओ। So under root f by square plus fx square. Yes, as simple as that. f is nothing but under root of fx का square plus fy का square. That's it. ठीक है, now please do the calculations and see whether you get this answer or not. अच्छा, अब बात आती है at which angle is this force acting? ये भी निकालना बहुत आसान है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, एक बार देखें ये वर्क करने लग गया क्या? इससे लिखना बड़ा मुश्किल है एंड ड्यू टू लैक ऑफ कनेक्टिविटी दिस इज नॉट वर्किंग। चलो आप देखो, दिस इज वर्किंग। एफ एक्स मेरा यूं आया है, एफ वाई मेरा यूं आया है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर कहूं आई कैन टेक सम एग्जाम्पल वैल्यूज। मैं ऐसा रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एफ वाई इज इक्वल टू +4। हाउ डू यू फाइंड द एंगल थीटा? इसके लिए क्या करना है? So आप 10 हमेशा plus ऐसा 30 ही, is -4 by. हाँ ये देखो, ऑलवेज ड्रॉ द क्रॉस हेयर लाइक दिस एंड एफ एक्स इज -2। तो अब आप कभी भी ये काम मत करना। क्या करते हैं लोग? जनरली बोलते हैं थीटा निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। यस सर, अपॉन fx
और उसके बाद क्या करेंगे, एफ वाई अपॉन एफ एक्स का मतलब 4 अपॉन -2 यानी कि -2। फिर उसके बाद क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -2। दिस इज रॉन्ग, ये कभी मत करना ऐसा काम। ऑलवेज ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम लाइक दिस एंड देन लोकेट योर फोर्सेस ऑन द क्रॉस हेयर। एफ एक्स इज -2 का मतलब है -2 यूं आएगी, ठीक है, दिस इज -2। एफ वाई इज +4, इसका मतलब एफ वाई ऊपर को आएगी, दिस इज +4। एंड नाउ the resultant f will make an angle theta with the x axis here, this is theta। तो ये फिगर बना दो आप तो अपने आंसर कॉपी में, and then how will you declare theta? Theta will not be tan inverse of 4 upon हाँ ऊपर से पे अरे भाई ये कर रहा हूँ फर। स्पीकर बंद करके चिल्लाओ भाई, कौन है ये? theta is equal to tan inverse of 4/2, or rather theta should always be defined by the magnitude only। थीटा को फाइंड करते टाइम नेगेटिव साइन को नहीं लेना है। So always remember tan theta should be put equal to magnitude of fy upon magnitude of fx, and then you draw a figure like this and show that theta is in the second quadrant or the third quadrant or the fourth quadrant। जिस quadrant में है वो डायग्राम के साथ में दिखा दो, ठीक है। This is how you have to be very careful in finding the value of theta। So with this we have completed this problem। इस प्रॉब्लम में आप थीटा निकालने की कोशिश करो और टोटल एफ निकालने की कोशिश करो। इस तरह की प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आती है, लेकिन अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं इसको लेकर के, ठीक है। एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम भावी कट्टी। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन ये आप लोग करेंगे अपने आप, और अगर आपसे नहीं हो पाता then you go and refer to example 16.1 from भावी कट्टी बुक। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले एक बार। अ ग्लास मार्बल का मतलब कंचा, ठीक है, whose weight is 0.2 न्यूटन falls from a height of 10 मीटर, ठीक है। एक जमीन के ऊपर एक कंचे को 10 मीटर ऊपर से छोड़ दिया गया, सो इट केम डाउन एंड हिट द ग्राउंड, ठीक है। ये 10 मीटर ऊपर से छोड़ा इसको, एंड रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर्स। यहां से टकराया और टकरा करके वापस ऊपर को गया, लेकिन ऊपर कितनी दूर जा पाया, सिर्फ 8 मीटर्स जा पाया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मार्बल व्हिच वाज रिलीज्ड, इट स्ट्रक द ग्राउंड, rebounded and went to a height of 8 meters। Find the impulse and the average force between the marble and floor if the time during which they are in contact is 1/10 of a second। यानी कि t दे रखा है, मास ऑफ मार्बल दे रखा है, 10 मीटर ऊपर से फेंकेंगे, तो इसमें हिंट सिर्फ इतना है, यू हैव टू फाइंड आउट कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चलते अगर 10 मीटर ऊपर से किसी चीज को ड्रॉप किया जाए तो जमीन पे कांटेक्ट से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1, ठीक है। अब बॉल या मार्बल आपकी जमीन से टकराई, कंप्रेस हुई और वापस रिबाउंड होकर के ऊपर को उछली, तो वापस उछलते टाइम उसकी वेलोसिटी v2 कितनी रही होगी, जिसके कारण कि वो -g एक्सेलरेशन के चलते 8 मीटर तक ऊपर पहुंच पाया। सो दिस इज द टास्क दैट यू हैव टू अकम्प्लिश, दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2। और ये बता दो, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इवन जो अपने मैकेनिक्स की क्लासेस को सीरियसली ले रहे हैं, उनको ये बात ऑलरेडी याद हो जानी चाहिए दैट द वेलोसिटी of dropping or rebound is always given by under root of 2gh।
ये हर केस के लिए एप्लीकेबल है व्हेनेवर द मोशन इज हैपनिंग अंडर ग्रेविटी। अगर मैं 5 मीटर ऊपर से किसी भी चीज को ड्रॉप करूं, चाहे एक बॉल ड्रॉप करूं, चाहे फुटबॉल ड्रॉप करूं, चाहे एक पेन ड्रॉप करूं, चाहे मार्बल ड्रॉप करूं, कुछ भी हो, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इट विल बी √2 इंटू जी इंटू 5 मीटर। अगर मैं 10 मीटर ऊपर से कोई चीज छोड़ता हूं तो ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले उसकी कितनी वेलोसिटी होगी? √2 इंटू जी इंटू 10 मीटर। अब उसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि कोई चीज जमीन से टकराई और जमीन से उछल करके वापस ऊपर को गई, और किस एक्सेलरेशन के चलते? -g एक्सेलरेशन के चलते, तो वो कितनी हाइट तक जाएगी? तो वो भी बहुत आसान है, इसी सेम इक्वेशन को लगा देना है आपको। तो अब मेरे को ये पता लगा कि कुछ ऐसी वेलोसिटी थी v2 जिसके स्टार्टिंग से लेकर के ये 8 मीटर तक हाइट तक पहुंच गई -g एक्सेलरेशन में चलते चलते। तो वो कितनी वेलोसिटी होगी? तो वो भी √2gh होगा। अब ये सब क्यों आ रहा है, ये √2gh कहां से आया, ये मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा। यू गो एंड विजिट दीज प्रॉब्लम्स ऑफ काइनेमेटिक्स। v² - u² इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को विजिट करो, एक्सेलरेशन की जगह पे g रखो, s की जगह पर h रखो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये √2gh का फॉर्मूला आया क्यों। ठीक है, दिस इज द हिंट आई एम गिविंग। और उसके बाद आपको v1 डाउनवर्ड है, v2 अपवर्ड है, तो इनमें से किसी एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव चूज करके चलना पड़ेगा, एंड देन try to find out the value of impulse and try to find out the value of force। टाइम दे रखा है, ठीक है। वंस अगेन यू हैव टू अप्लाई इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। यही सेम चीज करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, look at this problem. A moment and a force simultaneously act on a pivoted mass as shown in figure। पहले इस फिगर को समझने की कोशिश करो। एक मासलेस रॉड मान लो आप। I have forgotten to write that the rod is rigid but massless। तो इस रॉड की अपन मास कंसिडर नहीं कर रहे। There is only a concentrated small ball of mass which has a weight or rather mass of 150 kilograms। 4 मीटर की दूरी पे एक खूंटे से इसको बांध दिया गया, ठीक है। एंड दिस कैन रोटेट अबाउट दिस पिवट। ये इस पिवट के अबाउट इस तरीके से घूम सकता है। अब इसको घुमाने के लिए आपने खूंटे पे या पिवट पे एक मोमेंट भी लगा दिया, बट as can be seen from what is given in the data, the moment is not constant। एक रोटरी मोमेंट को अप्लाई किया गया और मोमेंट कांस्टेंट नहीं है, 30t² है। अब सिर्फ एक मोमेंट ही नहीं, इस फोर्स, इस मास के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स भी लगाई गई और वो फोर्स भी कांस्टेंट नहीं। इट इज इक्वल टू 15 इंटू टी न्यूटन्स। द मोमेंट इज 30 इंटू t² न्यूटन मीटर। तो दो चीजों का इंफ्लुएंस एक्ट कर रहा है इस सिस्टम पे। तो अब जाहिर सी बात है कि आपने अगर ऐसे एक रोटेटेबल ऑब्जेक्ट पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाई तो इसके चलते भी ये घूमना चालू हो जाएगी, और अगर ये फोर्स नहीं लगाई होती और ये सिर्फ प्योर रोटरी मोमेंट लगाया होता तो भी ये घूमना चालू हो जाती। सो देयर आर टू रोटरी इफेक्ट्स which are simultaneously rotating the object। Find the tangential velocity of the mass after 5 seconds if it started from rest initially। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें भी 5 सेकंड का फंडा दिख रहा है, तो इससे मेरे को हिंट मिल गया कि मैं इसमें इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल लगा सकता हूं। लेकिन अब मेरे को दूसरी चीज ये भी दिख रही है कि दिस इज अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्योर रोटरी मोशन। इसमें कहीं लीनियर मोशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है।
सिर्फ एक मास है जो कि 4 मीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है और इस पिवट के अबाउट रोटेशन कर रही है बस, और दो एजेंसीज इसको रोटेट करा रही है, एक तो टेंजेंशियल फोर्स रोटेट करा रही है और एक मोमेंट खुद भी रोटेट करा रहा है। तो सबसे पहली बात तो इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल को मैं लीनियर वाले से हट करके अब मैं क्या लगाऊंगा, नाउ आई विल ट्राई टू अप्लाई इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल फॉर रोटेशन। तो उसमें इंपल्स की जगह एंगुलर इंपल्स आ जाएगी और मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। सो वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास। और आप इस प्रॉब्लम को, जो मैंने प्रॉब्लम नंबर 3 आपको सॉल्व करने को दिया है, इसको आप लोग जरूर ट्राई करें अपने आप। प्लीज डू ट्राई इट and try to solve it on your own. If you are unable to do that, it is a solved example in Bhabikatti 16.1 पे जाकर के चेक कर लेना। But I sincerely hope that you should be able to do this. मैंने आपको पूरी कहानी तो सब बताई दी है, सारे आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो सब क्लियर कर ही दिया है कि इसको कैसे निकालना है। ठीक है, प्लीज ट्राई इट आउट। Now I will take your attendance.